بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उबैद. Good afternoon, Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome you all on वापसा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़. जैसे कि आप तमाम दोस्तों को और साथियों को मालूम है कि कुछ अर्सा पहले हमने ऑनलाइन जो वापसा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था, और अगेन इसका पर्पज़ यही था कि हम कोचिंग और नर्चरिंग करें, ना सिर्फ अपने यंग टैलेंट की बल्कि इंडस्ट्री में जो मौजूद लोग हैं या जो फार्मर हैं उनकी इस्लाह के लिए भी हम शेयरिंग का काम करें. आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा रियाज, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी. साथ ही साथ शी इज़ ऑल्सो होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी वापसा पाकिस्तान वुमेन विंग. Today, she would be talking on the application of gene editing in poultry disease prevention. जैसे कि आपको मालूम है टॉपिक से ही कि it is something is a new era which has been started and it is under work, and of course she would be sharing today कि what's can be happened in Pakistan and how we can implement these new technological innovations in order to prevent the disease. So I'm sure this lecture is going to be very interesting. Before start, I would like to set some house rule. I may request to all participants either joining us through Zoom or would be joining on the Facebook. If they have question, they can put their question. They can share their question. Those who are on Zoom, they can share in the chat box. Those who are live, they can share in our messenger, so that we can take those questions and get answer from Dr. Aisha. In case, because of the time limitation, if we can't answer all the questions, but I assure you that we will try to come back and we'll provide all the answers to all the relevant questions. So at first, Dr. Aisha would be presenting her presentation, and then we have a question answer session. And I would request all the participants, at least they should participate and they make it an interactive session, because we have a very good learner people sitting on the board today, and hopefully they will add their value and they will have their comments once we finish or once we have a question answer session. So once again, I welcome Dr. Aisha Riaz to tell us about the application of gene editing in poultry disease prevention. Over to Dr. Aisha Riaz. Assalamu alaikum. Thank you very much, Dr. Shahzad Naveed Jadoon. I'm really thankful to this platform कि मुझे एक opportunity मिली कि मैं यहाँ पे present कर सकूँ in front of very learned people from industry, for academia, and यहाँ students भी हैं. It's a very mixed audience. So I will try my best to कि मैं इंसाफ कर सकूँ कि जो मैं बता रही हूँ. बट अगेन अगर कहीं पे मैं गलत होंगी मुझे प्लीज़ करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा. I chose this topic, application of gene editing in poultry disease prevention, because first of all it is now the world of gene editing. Secondly, I have also interest in gene editing. I have done my PhD from University of Edinburgh, UK, where I performed some experiments. Lekin those were not the techniques which are nowadays very common, but it was like mutagenesis and insertions, deletions, and I could see at that time that how beneficial it is, कितनी ज़्यादा इसमें फ़ायदा है और कितना ज़्यादा इसको हम आगे लेके बढ़ सकते हैं. There are endless opportunities. But my presentation today will mostly focus on two things: gene editing और दूसरा poultry से related जो भी advancements हैं. Not only the diseases but also a few examples I will quote here जो कि poultry production से related हैं, तो वो मैं बताऊंगी.
a big chunk of my presentation includes the introduction of gene editing, because I know there are students as well who want to know that what the gene editing is, how does it work, and then we will discuss the some applications. I was quite nervous before Dr. Sajidoon, maybe remember, मैंने उनसे कहा था कि I chose a different topic, जो कि तो उन्होंने कहा था you should think out of the box. So I really thank Dr. Jadoon for that. So वाकई we should think out of the box. So first, in my presentation, I will introduce about the biotechnology, gene editing. What is it? The gene editing is gene editing tools, but and out of those tools, one of that is CRISPR-Cas9 technique, which I will tell a little bit that how we can do this or we can perform this technique. Then is the how gene editing works in the poultry, application of gene editing in the poultry, then some of the, because this is gene editing and we definitely need some policy changes or challenges, and then how we can use it in the future. So first of all, very basic thing that the genome, because it starts with the genome, the genes. Genome is, we all know that it is genome is an organism's complete set of genetic instructions. Each genome contains all of the information needed to build that organism and allow it to grow and develop. The genome is actually consists of DNA, and in some viruses it is made up of RNA. And इस genome में DNA जो है, it can be coding, it can be non-coding. Coding जो भी DNA है, that forms a functional protein, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कि हमें phenotype जो मिलती है, that is the coding that came from coding region, while non-coding region a huge amount of, or कह सकते हैं percentage of the genome consists of non-coding region. So this is the genome. Genome में जो DNA है, it is made up of base pairs, and DNA is, you all know that is a double-stranded structure, and the double-stranded structure is joined with each other with complementary bases. ठीक है, और A binds with T, G binds with C, so ACTG. This is the game of these 4 nucleotide bases. So this is you. These are your cells. We all are made up of cells. These are actually the picture of brain cells, which are somewhat colored. This is a picture, you know that the cell looks like this. In books में हमें इस तरह की picture दिखाई जाती है. लेकिन एक सेल में मौजूद बहुत सारे ऑर्गन, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन करते हैं, दे फॉर्म 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. दे कैन जो कि मुख्तलिफ जगहों से दे कैन बेंड, ठीक है, और दीज स्ट्रक्चर्स मेड many infinite kind of bendings. और वो जब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, these proteins can bind with different molecules. अब DNA के साथ भी प्रोटीन्स बाइंड कर सकती हैं. अगर प्रोटीन्स DNA के साथ बाइंड करती हैं तो इसको हम कहते हैं DNA binding proteins. When these proteins bind with RNA, we call it RNA binding proteins, and in this way they work so much. There is a huge number of processes which occur on the basis of these DNA and RNA binding proteins. My work in the PhD was on microRNA. I work on the protein which was microRNA binding protein, and that it was responsible for the stopping the translation. यानी प्रोटीन ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये ट्रांसलेशन रोक सकती है, ठीक है. इसी तरह से जीन एडिटिंग में there is a huge role of the proteins and DNA and RNA binding proteins. So this one is actually the central dogma. Everybody knows that DNA, it transcribes into RNA, and messenger RNA translates into the protein. And important thing is these DNA and RNA, they actually are the genotypes, whereas the proteins, they are the phenotypes. Genetic diversity comes with the changes in this DNA structure. Any change in the DNA will change the phenotype. It will cause the diversity in the
genes. It will cause the diversity in the information which is present on the genes. There are countless species in this world of living things, and genetic diversity is the variation in the genetic composition among individuals of a population, of a species, or of a community. So, diversity on a genetic level is a reflection of the similarities and differences in the genes of the individuals. अब genes जो हैं, ये आप ये जो trees देख रहे हैं, these are phylogenetic trees हम इनको कहते हैं. They actually इसमें जो closely related या similar species हैं, वो they are present very close to each other. Where they are different genetically, they are located very far from each other. And these trees actually they are made on millions of years of you can say that कि जो diversity आती है वो it takes millions of years. You can see this graph. In this graph you see that there is influenza. It has only 11 genes on its genome, while E. coli it has 4 to 5,000 genes on its genome. In the same way, fruit fly, chicken, human which has 22 to 23,000 genes on the genome. जबकि grapes आप देख सकते हैं कि they are very small but they have a much higher number of genes than human beings. It means that diversity doesn't come with the कि सिर्फ चेंज हो जाएं जीन्स, बल्कि जीन्स का नंबर भी जो है वो इंक्लूड करता है. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी वजह से हमें इतनी सारी जो स्पीशीज़ दुनिया में नज़र आती हैं. बट और ये जो डाइवर्सिटी है हाउ डज इट अकर्स. It occurs because of the changes in the DNA. While when DNA replicates, it creates 2 copies of DNA. ठीक है, एक DNA कॉपी से दूसरी कॉपी. अब while ट्रांसक्रिप्शन while replication यानी कि जब उसकी 2 कॉपीज बन रही हैं, any one nucleotide can be changed accidentally or any error can occur, और उसकी वजह से जो phenotype है वो चेंज हो सकता है. It is very important. Sometimes these इसको हम mutations भी कहते हैं. जो mutations हैं sometimes वो इस तरह की होती हैं कि they can transfer to the phenotype. Sometimes they don't transfer to the phenotype, or sometimes mutations are good and sometimes they are bad. अगर एक अच्छी mutation होगी, survival का rate बढ़ जाता है उस species का. लेकिन अगर एक species की म्यूटेशन उसमें कुछ ऐसी हो जाती है जो कि नहीं हो, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल का रेट कम हो जाता है, तो वो स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है. इसको हम नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी कहते हैं. यू कैन सी दैट दिस इज़ मोथ, पतंगा. एट ए टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से दरख्त जो थे वो ब्लैकिश से हो गए थे, तो उस टाइम पे देखा गया कि जो ब्लैक मॉथ है वो उसकी स्पीशीज़ जो हैं वो कम नहीं, उसकी जो नंबर है कम नहीं हो रहा, जबकि वाइट मॉथ जो है उसका नंबर बहुत बढ़ रहा है. जिसकी रीज़न क्या थी? इट बिकम्स प्रोमिनेंट. अब ये जो कलर चेंज है इनकी स्किन का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द जीन्स. in any one mutation has changed the color of the moth. लेकिन because of the color ये it is more prominent to the predator, लेकिन black वाला it is not prominent to the predator. It survived whereas it was slowly finished. In the same way giraffe, जो giraffes के आपको आप जानते हैं they are ancestors, they are not long necked, लेकिन long necked are अब giraffes नहीं हैं. Why? Because of the scarcity of the food and the hunger. Long neck giraffe, because of the जो long neck है, it came from the change in the genetic makeup, और ये naturally था. No human did that. तो they survived whereas the other didn't. अगर यही changes खुद से ह्यूमन बींग्स क्रिएट करें तो इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कह सकते हैं. वो और ये भी सेंचुरीज से चलती आ रही है. इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर ह्यूमन स्पीशी. वी नो दैट कि कॉर्न की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. एनिमल्स जो हैं उनमें प्योर ब्रेड के लिए और एक अच्छी ब्रीड के लिए कोशिश की जाती रहती है. इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, और ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, ट्रेट्स. लेकिन अगर आप डीपली सोचें तो दिस इज when you are dealing with the phenotype, actually you are manipulating something behind it, but that is the gene. You are changing you are actually manipulating the genes, but you are unintentionally doing that. लेकिन अगर हम इसको लैब्स में करते हैं तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. बायोटेक्नोलॉजी
It came in the 19th and 20th century. इसका ये revolutionary time था बायोटेक्नोलॉजी का. लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, it starts in 1970s. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम इसे क्यों कहते हैं? यू ऑल नो दैट के जो डीएनए है, इट वाज इसका जो स्ट्रक्चर है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1953 एंड आफ्टर दैट सब जब ये आइडिया हो गया कि डीएनए किस तरह से बना है, many scientists they started work on that, but the revolutionary work was done in 1971 when a scientist named Paul Berg from Stanford, what he did that he cut a DNA, एक प्लाज्मिक डीएनए को उसको वो उसने कट कर सका, उसको कोई एक ऐसा एंजाइम मिला और उसके बाद वो उसको इंसर्ट कर सका उस कट डीएनए को इनटू अनदर डीएनए. इसको वहाँ से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एक टर्म स्टार्ट हुई. सेकेंड रेवोल्यूशनरी स्टेप वाज द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए. सीक्वेंसिंग एक दफ़ा जब हो जाती है तो पता चल जाता है ये स्पीशी कौन सी है और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं. एक स्पीशी अपनी ही जैसे दूसरे एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल से कहाँ कहाँ पे मुख्तलिफ है जेनेटिक लेवल पे. So these two things are becomes the basis of the gene editing. उसके बाद you know that एक revolutionary time था, biotechnology was flying very high. In 1996 you know that first cloned animal came. It was also from the Roslin Institute, the university from where I did PhD. Then the GM food, genetically modified food up, you know that you have heard about it a lot, the DNA fingerprinting. And one thing which is very important is this synthetic insulin. Insulin, it was the first golden molecule of the biotech industry and the direct result of recombinant DNA technology. And currently millions of diabetic patients, they are using this synthetic insulin to regulate their blood sugar levels. And usually this synthetic insulin is made in bacteria or yeast. एंड अदरवाइज इसकी जो ज़रूरत है इतनी ज़्यादा है कि ये अगर सिर्फ किसी सोर्स ह्यूमन सोर्स से या एनिमल सोर्स से ली जाती तो ये इसकी कमी पूरी ना हो सकती. सो व्हाट आई वुड से दैट कि जो बायोटेक्नोलॉजी है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ एडवांसमेंट्स, इसका नाम बदलता गया है. बायोटेक्नोलॉजी, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड देन जीन एडिटिंग. और इसके लिए जीन एडिटिंग के लिए अब बहुत सारे टूल्स हैं. जीन एडिटिंग को मैं इस तरह से कहूँगी कि इट इज़ एक्चुअली द एडिशन, डिलीशन, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन or any changes or replacement in the genome of a living organism is gene editing. Now there are two things. जीन एडिटिंग जो है ये जो प्रिसाइज जीन एडिटिंग के तरीके हैं जो 2013 से स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले भी हो रहा था. बट एट दैट टाइम जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या फूड है या एनिमल्स हैं उनमें, लेकिन वहाँ पे चेंजेस जो की जाती थी डीएनए में, दोज वर लिटिल बिट रैंडम, right? But in precise gene editing techniques, you know that कहाँ पे आपने जाके जिस डीएनए को किस बेस पे टारगेट करना है. So it is very precise and according to the research nowadays, it is you can get efficacy up to 45 to 50%, even sometimes more than that. लेकिन अगर जो पहले वाली टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं तो we have 2 to 4% of the positive ratio. तो जीन एडिटिंग टूल्स क्या हैं? नाउ आई कम टू द जीन एडिटिंग. इसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए. टूल्स को मैं इस तरह से लूँगी कि जैसे कोई भी चीज़ करने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है. तो ये जो जीन एडिटिंग है, इट इज़ गोइंग ऑन इन द सेल. हमें सेल्स के साथ प्ले करना होता है, हमें डीएनए के साथ प्ले करना है. We need some enzymes which can cut the DNA. We need a few things which can join the DNA together. So these are the tools. The main important tools for gene editing are 4. According to their efficacies, और मैं इनकी अभी आपको importance भी बताती हूँ. First one is the meganucleases. Second one, nucleases. आप देख सकते हैं कि जो nucleases का word है, जहाँ भी कहीं आएगा इसका मतलब है ये nucleic acid को cut करेगा. This enzyme has the nuclease is an enzyme. It's a protein. It can cut DNA at a specific place. So meganucleases
पहले यूज़ किए गए जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस यूज़ किए गए, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक अफेक्टर बेस्ड न्यूक्लियसेस यूज़ किए गए जिनको टैलेंस भी कहा जाता है। देन क्रिस्पर Cas9 सिस्टम, जिसका के एक्रोनिम है ये इसका क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स अ माउथफुल ऑफ वर्ड्स। आपने इसके भी मैं बताती हूँ कि इसका ये नाम क्यों रखा गया था। और इस सब को हम जेनेटिक सिजर्स भी कह सकते हैं। और ये चारों के चारों जो टूल्स हैं, दे कैन कट द डीएनए, दे कैन मेक अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक। डीएनए के एक स्पेसिफिक प्लेस पे ये उसको डबल स्ट्रैंड को काटते हैं। अगर फर्ज करें सिर्फ एक स्ट्रैंड कट हो तो फिर नेचुरली कुदरत का निज़ाम इस तरह का है कि जो अदर स्ट्रैंड है वो उसकी रिपेयर हो जाती है। रिपेयर या डबल स्ट्रैंड की भी होती है, बट इट इज़ एरर प्रॉन। एरर प्रॉन मीन्स दैट कि उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो इन चारों सिस्टम्स में डबल स्ट्रैंड ब्रेक होती है, यानी जिस जीन को आप कट करना चाह रहे हैं, जिस जीन को आप काम करने से रोकना चाह रहे हैं, आप उसको प्रिसाइज प्लेस पे जाकर कट करवा देते हैं। और अगर एफिकेसी देखी जाए, फिजिबिलिटी देखी जाए, तो CRISPR-Cas9 इज़ द बेस्ट वन। वाई? Because these other three ones are expensive, they are lengthy processes, they need much more things as compared to CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 system जो है, it is efficient, it is it is fast, it is economical, और इसकी रीज़न भी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो CRISPR-Cas9 को हम आगे डिस्कस करेंगे rather than we discuss the other three things, because people in the world, they are going towards the CRISPR and leaving the other three systems. तो CRISPR सिस्टम जो है, अब ये कैसे डेवलप हुआ था? It is actually a system which is very ancient system. Ancient system का मतलब ये काफ़ी पुराना सिस्टम है। पुराना सिस्टम मीन्स कि ये ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद था। इसका नाम दिया गया क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का। वो इस वजह से कि ये डीएनए की कुछ रिपीट रीजन्स हैं, और ये डीएनए के अंदर बार बार ये रिपीट रीजन्स आते हैं। ठीक है, जीनोम के अंदर ये रिपीट रीजन्स बार बार आते हैं। यहाँ पे ये आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि किस तरह से पता चला कि क्रिस्पर है क्या। ये एक्चुअली बैक्टीरिया का एक सिस्टम है। बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरियोफेजिस से बचाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था अंटिल 1987। 1987 में ये फर्स्ट टाइम देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम योशिजुमी इशिनो अपनी टीम के साथ ये इकोलाई पे काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे तब भी उसको ये आइडिया नहीं था कि what is this? They found out there is repeat region in the E. coli genome. They were surprised to see that, and they think that it is nothing, it's just like something non-coding region. But later on, some other researchers work on that, and a researcher from Spain, he worked on it, and he found out that this repeat region is coming again and again, और उसके हर repeat के बीच में एक स्पेसर या एक स्पेस रीजन होता है जिसके अंदर एक डिफरेंट डीएनए का सीक्वेंस मौजूद होता है। यानी ये जो रिपीट्स हैं इनका सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन जो स्पेसेस इसके बीच में आ रही हैं उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। तो उसने इसका नाम दिया क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड इसलिए कि ये क्लस्टर्स हैं, यानी 1 2 3, यानी ये बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये एक जैसे होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख दिया है GAGGCCTC, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके जो दरमियान में आपको स्पेसर रीजन नज़र आ रहा है, इसका सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ये हर स्पेसर रीजन का सीक्वेंस दूसरे स्पेसर से मुख्तलिफ है। और इसके साथ साथ ये रिपीट रीजन्स जो हैं, जो वो साइंटिस्ट था उसने इनको ये नाम दे दिया, लेकिन इसका काम का पता कब चला कि द पर्सन हु वन ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द योगर्ट, ये जो पिक्चर है ये योगर्ट की पिक्चर मैंने ऐसे ही नहीं लगाई। एक्चुअली द पर्सन वाज वर्किंग ऑन द योगर्ट, एंड योगर्ट यू नो दैट इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ही वाज वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। उसने देखा कि कुछ जो स्ट्रेप्टोकोक आए थे, दे वर डाइंग बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस, जबकि कुछ बैक्टीरिया थे उनमें ये
जो स्ट्रेप्टोकोकाई थे वो उनकी डेथ नहीं हो रही थी। तो he sequenced both of them in 2005. He sequenced both of those and he found that कि जो बैक्टीरिया किल नहीं हो रहे उनके स्पेसर रीजन में, किसी एक स्पेसर रीजन में बैक्टीरियोफेज के डीएनए मौजूद है, यानी बैक्टीरियोफेज के डीएनए का एक पार्ट मौजूद है। तब पता चला कि जो क्रिस्पर रीजन है वो एक्चुअली बैक्टीरियो ये एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है बैक्टीरिया का अपने एनिमीज के अगेंस्ट। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने एनिमी का जीन का एक छोटा सा पार्ट अपने जीनोम के अंदर फिट कर लेता है। यानी जैसे कि एक पुलिस स्टेशन में एक मुलजिम की पिक्चर लगा दी जाती है कि भाई ये वो मुलजिम है, इसको जहाँ भी मिले इसको पकड़ के अपने जेल में बंद करना है, सज़ा देनी है। इसी तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो ये स्पेसर्स जो हैं एक्चुअली इनकी ये नहीं है कि ये यूजलेस हों, एक्चुअली हर स्पेसर कोई ना कोई बैक्टीरियल एनिमी या बैक्टीरिया को जो फौरन बाहर से आने वाला पार्ट डीएनए उसका पार्ट इसके अंदर इंसर्ट हुआ है। तो इसको वो पहचानता है और फिर इसको वो किल करता है। वो किस तरह से करता है कि जब एक फेज वायरस फर्स्ट टाइम अटैक करता है बैक्टीरिया पे, वो अपना डीएनए इंसर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल अक्सर लोगों को पता होगा, उसमें ये होता है कि बैक्टीरियोफेज बाहर रहता है लेकिन सिर्फ अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है। और डीएनए जो है वाइल इट्स ट्रांसक्राइबिंग, इसके जीन्स का कुछ पार्ट जो है बैक्टीरिया अपने स्पेसर रीजन पे जाकर फिट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेनी में अगर ये बच जाता है बैक्टीरिया या लिटिक साइकिल है या जो सॉरी दूसरा है साइकिल है जिसमें कि बैक्टीरिया के सेल की डेथ नहीं होती, तो ये इस इंफॉर्मेशन को अपनी प्रोजेनी में भेज देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन गोज इनटू द जनरेशंस देन। और फिर अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन दूसरी दफ़ा जब एक दूसरे फेज ने अटैक किया, यानी कि इसी टाइप के दूसरे फेज ने अटैक किया बैक्टीरिया पे, तो इस बैक्टीरियम ने क्या किया कि अपने जो ट्रांसक्रिप्शन जब की इस क्रिस्पर रीजन की, तो हर एक रिपीट रीजन के साथ एक जो था वो स्पेसर जो है वो ट्रांसक्राइब किया। यानी अब यहाँ पे कई तरह के आरएनए बन रहे हैं, इनको क्रिस्पर आरएनए कहते हैं। ये रिपीट रीजन ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है और इसके साथ जो कलरफुल हैं ये हर एक डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट बैक्टीरिया के एनिमी की जीन का पार्ट है। आई होप आई कुड टेल यू क्लियरली। अब क्या होता है कि ये जो क्रिस्पर आरएनए है ये एक प्रोटीन जिसे कहते हैं Cas9 प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और वो सारे सेल के अंदर मूव करते रहते हैं। इट्स एंड ट्राइंग टू फाइंड इट्स टारगेट का मतलब फेज के डीएनए के अंदर वो रीजन जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। अब ये आरएनए है, फेज का जो डीएनए है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन अ सर्टेन प्लेस। उसके बाद ये जो Cas9 प्रोटीन है ये इसको डबल स्ट्रैंड ब्रेक के साथ कट कर देती है। It's a very cruel protein. It's cut the DNA from both sides. यानी ये जो जीनोम है ये फेज की जीनोम थी, ठीक है। ये क्रिस्पर आरएनए था जिसके साथ ये इसका रिपीट रीजन, इसको गाइड आरएनए भी कहा जाता है। ये रिपीट रीजन की ट्रांसक्राइब हुआ और ये वाला स्पेसर रीजन से ट्रांसक्राइब हुआ और इसने जाकर फेज के जीनोम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग की और Cas9 ने इस बाइंडिंग को रिकॉग्नाइज किया और इसने डीएनए को दोनों साइड से कट कर दिया। अब इसके नतीजे में क्या होगा? देयर विल बी अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक। इस ब्रेक के नतीजे में सेल्स के अंदर होती है नेचुरली रिपेयर की गुंजाइश होती है। अब क्या होगा कि जब ये रिपेयर होगा तो रिपेयर के दौरान, अब दो तरह से रिपेयर हो सकता है। रिपेयर के दौरान एक तो ये है कि कोई ना कोई म्यूटेशन बीच में आ जाती है। जब म्यूटेशन आएगी तो ऑब्वियसली दैट म्यूटेशन विल नॉट लेट द फेज टू ग्रो अगेन। और इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है रिपेयर का, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज होमोलोगस रिपेयर, और वो खुद से करवाया जाता है, वो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम। तो इस तरह से बैक्टीरिया ने रोका इसको। इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने। उनमें से दो साइंटिस्ट थी, मैनुएला शार्पेंटियर एंड जेनिफर डाउना। दे बोथ won a Nobel Prize in Chemistry 2020 और they for their groundbreaking work on CRISPR technology for the development of this tool। अब इसमें उन्होंने इसको डेवलप क्या किया
ये तो पहले से मौजूद था. What they did that actually their collaboration resulted in the successful recreation of this bacteria's genetic scissor in a test tube. यानी अब उन्होंने इसको सेल से निकाल कर टेस्ट ट्यूब में लेकर आए, यानी कि लैब में बैठ के ये काम अब हम इसको कैसे कर सकते हैं. और ये भी सोचा गया कि हाउ वी कैन रिप्लेस द स्पेसर डीएनए जो कि बैक्टीरिया के एनिमी का डीएनए था, अगर उस डीएनए की जगह हम अपनी मर्जी की किसी जीन का डीएनए लगा दें तो फिर वहाँ हम उस जीन को कहीं से भी कट करवा सकते हैं. So they actually thought a system. They figured out how to hijack CRISPR to target not just the viral DNA but any DNA in almost any organism. For that they won the Nobel Prize. अब इसकी applications जो हैं CRISPR की बहुत सारी हैं. We can knock out any gene. Knock out का मतलब कि हम जीन को डिसेबल कर सकते हैं, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि जीन जो है अगर उसको दोनों एंड्स जब ये ब्रेक हो जाते हैं, वो जब दोबारा ज्वाइन करें और उसमें कोई ऐसी म्यूटेशन हो जो कि इसका फंक्शनल प्रोटीन ना बनने दे, तो वो जीन डिसेबल है. इसके अलावा रिप्लेस जीन्स और इंसर्ट न्यू वंस. जब हम लैब में काम करते हैं तो हम साथ में ये सारे कैस सिस्टम के साथ साथ डोनर डीएनए भी जो है ट्रांसफेक्ट करते हैं. ट्रांसफेक्ट मतलब सेल के अंदर डीएनए को डिलीवर करना, और इसके लिए मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद होते हैं. और एंड देन वी sorry actually the message was coming. अच्छा, the increase or decrease the expression of genes, यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाए, आपको वो जीन बहुत फ़ायदेमंद है और उसके एक्सप्रेशन से जैसे फॉर एग्जांपल मसल मास इन द चिकन, वी वांट कि उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाए, तो वी कैन यूज़ द सम ऑफ द जीन जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसका एक्सप्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन इन दैट. तो जैसे मैंने बताया कि दो इसमें तरीके होते हैं जो कि ज्वाइन करवाते हैं डीएनए को. वन इज़ दी एरर प्रोन डीएनए रिपेयर जो कि नेचुरल है, जैसे मैंने भी बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं म्यूटेशंस के, और इसमें जीन्स के नॉकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सेकंड वन, अगर आप खुद से उसमें कोई डोनर डीएनए ऐड करना चाह रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई कैंसर की जीन है या आप कोई जीन ऐसी है जो कि इनहेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि किसी म्यूटेशन की वजह से किसी ह्यूमन बीइंग में, किसी एनिमल में हो जाती है, आप उसके अंदर से वो जीन का उसको चेंज करना चाह रहे हैं, देन यू विल ऐड द डोनर डीएनए अलोंग विद दैट एंड यू विल सस्पेक्ट दैट कि वो डीएनए यहाँ पे जाकर बाइंड करेगा, और फिर उसके बाद हमारे पास जो नया जीनोम आएगा, जो नया जीन आएगा, दैट विल नॉट हैव दैट हेरिडिटरी डिजीज जीन. आई होप आई कुड एक्सप्लेन इट वेल. ठीक है, इसी तरह दिस इज़ द सेम थिंग, यानी कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक है हमारे पास, या तो हम उसे नॉकआउट कर सकते हैं और या फिर हम उसके अंदर कोई नया पार्ट ऐड कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अनदर पिक्चर फॉर द सेम थिंग. आफ्टर दिस यू कैन से दैट क्रिस्पर Cas9 के डिस्कवरी के बाद इट्स बिकेम एन एक्सप्लोजन, यानी कि इस पर इतना काम स्टार्ट हुआ कि विद इन 2 to 3 years thousands and thousands of papers came out, रिसर्च पेपर्स, जो कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया में लोगों ने इस पर काम स्टार्ट किया. और ये भी देखा गया कि इसमें जो अब आप खुद सोचें कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि लोगों ने इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ एफिशिएंट एंड पीपल कैन डू इट. इसके लिए कोई बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए केमिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत थी या बेसिक सेटअप्स की ज़रूरत थी, और कंपनीज ने इसको कमर्शियली इसकी किट्स बनानी शुरू कर दी, क्रिस्पर इन अ बॉक्स और क्रिस्पर न्यूक्लियस, एवरीथिंग. दे आर अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी इन दिस. तो अगर आप चेक करें तो यू कैन सी दैट इन द ऑन द इंटरनेट के कितनी कंपनीज जो हैं इसको इस पे पैसा लगा रही हैं. और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि सिंपल आपने इनको अपनी जीन का सीक्वेंस बताना है और वो उसको जो जो गाइड आरएनए है उसके साथ ये जोड़ के आपको भेज देंगे. देन यू जस्ट हैव टू inject it or transfect into the cells, into the animals, and then you have to see analyze the results. So now I come to the main part. I told you that half of my presentation would be mostly in the about the introduction of these things. लेकिन how we can use CRISPR in poultry? Already livestock में और बहुत सारी जगहों पे plants में ये technology बहुत ज़्यादा use हो रही है. इसके अलावा
जो पोल्ट्री में इसका जो यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैं फ्यू एग्जांपल्स दूंगी, वो इसलिए कि वी डू नॉट हैव मच टाइम, और इसके साथ साथ अभी पोल्ट्री में उतना काम नहीं हुआ जितना कि प्लांट्स और लाइफ स्टॉक में हो चुका है और अदर एनिमल्स में हो चुका है, और सम ऑफ द वर्क इज़ गोइंग ऑन इन द ह्यूमन बींग्स एज वेल, ह्यूमन सेल लाइन्स कह सकते हैं। सिंस दी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप हुए उसमें हम फॉरेन डीएनए या अनकंट्रोल्ड रैंडम म्यूटेशंस क्रिएट करते थे, लेकिन इन दिस वन we can control it by precise genome editing. So it is an intrinsic genomic sequence. It is just like natural mutation. यानी हमें इसमें कोई बाहर से फॉरेन डीएनए नहीं ऐड करना पड़ता, हमने उसी एनिमल या उस बर्ड के अंदर जो जीनोम है उसके अपने जीन को हमने एडिट करना है, राइट। उस तो इसको हम ये नहीं कह सकेंगे कि कोई फॉरेन पार्टिकल है। पब्लिक कंसर्न्स बहुत कम है इसके, और इसके साथ साथ सेफ्टी इश्यूज, फूड सेफ्टी या एलर्जन के इश्यूज भी इसके कम हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आई विल डिस्कस इन द माय नेक्स्ट स्लाइड्स। अगर देखा जाए तो चिकन्स में हम जो बायोटेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग जो है, आप कह सकते हैं कि इट इज़ फ्रॉम 1970s इट इज़ गोइंग ऑन। इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर द चिकन। ट्रांसजेनिक बर्ड्स का आपने या चिकन्स का सुना होगा, दैट वाज इन 1993 वाया जर्मिनल क्रिसेंट प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। Primordial germ cells जो हैं, they are very much helpful for the scientist in performing these experiments because they are very good cells. They can adapt. They can ये बात मान लेते हैं, they इसके अंदर changes बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो आप देखें जितनी भी रिसर्च मोस्टली प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के से को लेके की जा रही है, और इसी के साथ फिर आगे फर्दर और भी काम किए गए हैं जो कि क्रिस्पर में इसी को ज़्यादातर यूज़ किया गया है। तो प्रोसेस क्या हो सकता है जो हम कर सकते हैं फॉर द क्रिस्पर इन दी पोल्ट्री? वी टेक द primordial germ cells at the stage HH14 or HH25. HH is a stage of embryo. Actually after जैसे ही embryo की incubation start की जाती है तो उसके बाद ये stages जो हैं ये आती हैं. This is I think so because I'm sorry not very well known about these stages. लेकिन this is I think so on the first day, this is second or third day if I'm not correct, please correct me. तो ये वेरी अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट की, यानी जैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके बाद सेल्स की डिफ्रेंसिएशन थोड़ी सी स्टार्ट होती है. एट दैट टाइम वी कैन गेट दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, और उसके बाद हम इसको इन सेल्स को सेपरेट करके इन विट्रो सेल कल्चर टेक्निक में हम जो Cas9 का जो क्रिस्पर Cas9 है वो इसमें ट्रांसफेक्ट करते हैं. ट्रांसफेक्ट मीन्स अगेन बता रही हूँ कि इट इज़ द इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल्स थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रिक मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन या केमिकली हम इसमें ऐड कर देते हैं. अब ये जो क्रिस्पर सिस्टम है ये एक्चुअली डीएनए की या आरएनए की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है. तो ये जो प्रोटीन है ये अपने आप को वहाँ पे जाके सेल के अंदर खुद एक्सप्रेस करती है. उसके बाद इस सिस्टम को एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर दिया जाता है. एम्ब्रियोज में व्हेन वी इंजेक्ट दिस सिस्टम माइक्रो इंजेक्शन, देन दोज एम्ब्रियोज दे वर रेज्ड. अब जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो चांसेस हैं दे आर 45% ऑलमोस्ट. तो उससे ये होता है कि कुछ ऐसे भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं जिसमें कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं. एंड देन जो आपके पास जो एनिमल्स आते हैं या बर्ड्स आते हैं, दे आर जीनोम एडिटेड नाउ. दे हैव दिस, इसको चेक करने के लिए दे हैव मैनी मेथड्स लाइक रियल टाइम पीसीआर, लाइक वेस्टर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वो प्रोटीन बन रही है या नहीं. और उसके साथ फिर उसके बाद जब ये बर्ड्स व्हेन दे breed with other birds, they can give rise or they can give the progeny which has the same information. ठीक है, यानी अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफरिंग इनटू द जनरेशन. और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन मैनी थिंग्स. So where we can use them? We can use them to produce allergen-free food. We can use to generate the birds which can show disease resistance to the different disease resistant like avian influenza and other diseases.
the birds which can show tolerance to heat, it's a big problem. Muscle productivity, can enhance the muscle productivity. We can also use it for the therapeutic purposes as well, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ. So फर्स्ट इज द एलर्जन फ्री फूड. एलर्जन, अगर आप एग की बात करते हैं तो एग में जो एलर्जन है, मोस्टली बहुत सारे लोगों को एग की कंटेंट से एलर्जी होती है, और उसमें एलर्जन जो हैं दे आर मोस्टली ओवैल्ब्यूमिन एंड ओवोम्यूकोइड हैं. ये दोनों एग वाइट प्रोटीन्स हैं. तो इन दिस रिसर्च इट हैज़ बीन सीन दैट कि जो इन दोनों जीन्स में को डिसरप्ट किया गया, and then they produce some kind of mutation and disrupt those genes, and then, or you can say, the mutagenize them, or after that jo progeny आई, that progeny did not have that functional genes of these proteins. अब इसमें ये भी देखा जाता है, एक जो बहुत बड़ा एथिकल इशू है कि क्या इस चेंज की वजह से बर्ड को कोई चेंज आएगा, क्या इसकी वजह से एग को कोई चेंज आएगा, एग की न्यूट्रिशनल वैल्यू में चेंज आएगा. So the paper says that it did not show any changes in the nutritious value or any other things. So what can happen that by using this, the allergenicity will be low. So, for those people who are immune, who show immune response or who are sensitive to the egg proteins. इसके साथ साथ you know that egg white जो है वो food product के अलावा vaccines में भी use होती है. तो people who are individuals who are not, who are allergic to these, they can use it. Then is the disease resistance. This is the example from the Roslin Institute again. तो इसमें एक्चुअली ऐसे बर्ड्स जो हैं ट्रांसजेनिक जिसे कहा जा सकता है, या ऐसे बर्ड्स को डेवलप किया गया, एंड टोटली ऑन दी काइंड ऑफ यू कैन से नेचुरल सिस्टम के दैट दे कैन अवॉइड बर्ड फ्लू. किस तरह से बर्ड फ्लू को अवॉइड किया जा सकता है बर्ड्स में? दिस इज द सेम पेपर विच इज शोइंग दिस रिसर्च. APN जो एक जीन है ANP32A, दिस जीन इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस. वायरस जो है आपको पता है, इट इज़ एन इंट्रासेल्युलर एंटिटी. तो ये जब भी सेल के होस्ट सेल के अंदर जाता है तो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करता है. और एवियन इन्फ्लुएंजा में एक ये भी देखा गया है इसके में कि ये वायरस, ये जो डिजीज़ है, सॉरी ये जो वायरस है, जब ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है तो इसमें कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि इसको दूसरे होस्ट के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना देती है. तो अगर एक होस्ट सिस्टम में इसको रोक लिया जाए तो अगले होस्ट सिस्टम में ये नहीं जा सकेगा, या उसमें जाएगा तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा. तो व्हाट हैपेंस हियर दैट they cut some parts of the ANP32A, and they saw that कि वायरस डिड नॉट शो एनी पॉलीमरेज एक्टिविटी, यानी कि जो पॉलीमरेज जो होता है वो सेल की DNA को जो है वो उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो पॉलीमरेज एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई, which means that this the change in the ANP32 protein, it can abrogate viral replication in the chicken cells. एब्रोगेशन मीन्स कि स्टॉप कर रहा है वायरस की रेप्लिकेशन को. अब अगर वायरस रेप्लिकेट नहीं हो रहा, देन इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट होस्ट, कैन नॉट बी ट्रांसमिट टू द नेबरिंग होस्ट, और जो चिकन है या जो ह्यूमन बींग्स हैं, देयर विल बी very little chances. The other example of the disease resistance is the avian leukosis virus. Avian leukosis virus जो है, इसकी भी जो जीनोम है, इसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड को चेंज किया गया, और एक अमाइनो एसिड को चेंज करने से के बाद जो इसका जो NHE1 जीन है इसमें, तो क्या देखा गया कि जो बर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये एक अमाइनो एसिड चेंज किया गया था NHE1 जीन के अंदर, वो बर्ड्स उनमें एवियन ल्यूकोसिस वायरस जो है वो एंटर नहीं हो पाया. वाई? बिकॉज दिस इज ए रिसेप्टर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्टर ऑफ द वायरस. जो वायरस जिसके साथ जाके बाइंड करता है, सेल रिसेप्टर
on which this virus binds. तो एक अमाइनो एसिड की चेंज से वायरस के जो सेल रिसेप्टर में ऐसी चेंजेस आ गई कि अब वायरस उससे बाइंड नहीं कर पा रहा, which means that those chickens which have this edited gene, they will not be attacked by avian leukosis virus. Another very interesting example, which was not done in the primordial cells, but it was done directly into the chickens. It's just like a vaccine. It gives prevention. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि avian retroviruses, you know that it's an जो reticuloendotheliosis virus है, it is an avian retrovirus. It causes oncogenic or immunosuppressive disorders in avian hosts, and co-infection of the Marek's disease virus जो है जब होती है तो the severity of the disease enhances very much. Marek's disease भी एक oncogenic virus है, herpes virus है, लेकिन ये देखा गया कि इस वायरस को जो होस्ट के जो सेल्स हैं, होस्ट के सेल्स में रेटिकुलो एंडोथीलियल जो वायरस था उसका डीएनए Cas9 सिस्टम में एडजस्ट करके और फिर उसको मैरिक्स डिजीज के जीनोम में फिट कर दिया गया. ठीक है, अब उस मैरिक्स डिजीज का जो जीनोम है, ये वैक्सीन स्ट्रेन है मैरिक्स डिजीज का, जो कि डिजीज कॉज नहीं करेगा बल्कि प्रिवेंशन करेगा डिजीज की. अब जब ये दोनों सेल के अंदर जाते हैं, देन क्या होगा कि जो Cas9 सिस्टम है, अब वो वायरल डीएनए को सेल के अंदर अगर देखेगा तो वो उसको कट कर देगा, which means that this system not only giving protection against Marek's disease but also giving protection against this REV virus. Heat tolerance is another application. We can use this for the work is going on still. I haven't seen any results yet, but work is going on FGF2 and 20 gene, which is a gene responsible for the development of vertebrate skin. और अगर इस जीन में कुछ इंजर्शंस या डिलीशंस की जाती हैं, then the featherless chicken line can be produced, and these featherless chicken line will be less susceptible to the high temperature, or the areas which are very hot, they can be grown. Muscle productivity sorry, you all know that how important it is, लेकिन इसमें देखा ये गया कि myostatin is a gene which is a negative regulator of the skeletal muscle development. अब myostatin gene जो है उसको टारगेट किया गया through CRISPR-Cas9 process, and later on it was found out that the birds which were wild type का मतलब होता है कि जो original birds हैं जिनमें कोई changes नहीं की गई, कोई edit नहीं किया गया, और those which are myostatin knockout जो chicken थे, उनकी muscle mass में significant difference था. The muscle mass of the myostatin knockout chickens is much bigger and significantly bigger, but and also the fat deposition was less. Abdominal fat deposition was also quite less. So it's a big, I think it's a big breakthrough. And then some of the things which are also going on, just 2 more slides, I think. So I will go and then we will go for the conclusion. Researchers in the University of Edinburgh, Roslin Institute, they have genetically modified chickens to produce human proteins in their eggs. And chickens which lay medicines. They gave this the name. Interesting. What they are doing actually, they are inserting these genes into the genome of the chicken, and chickens, they are laying the human proteins or canine or other proteins which are very important for and which are very expensive, जो वो eggs की egg white में आती हैं. Just 3 eggs contain clinically significant dose according to the scientists who developed this process. So the proteins which are actually जो यहाँ पे मैंने highlight किया, आप ये देखें कि ये लिखा है research at the Roslin Institute established the technology to create, और ये actually commercially available हैं. The platform has now been commercialized through Roslin technology, which means that they are commercializing this technique, which means that it is going on at the moment.
Macrophages, CSF is going to they are producing, and you know that this is very much important for the damaged tissue repairs. Interferon alpha 2A, this is human protein, and it has antiviral properties. It also has anti-cancer properties. It's being used in clinics nowadays. यानी कि जो अल्फा 2 इंटरफेरॉन अल्फा है ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लोग इसको क्लिनिक्स में इस्तेमाल भी करते हैं. नॉट दिस एग वाइट, बट जो ह्यूमन से लिया जाता है. और इसके अलावा इट ट्रीट्स हेपेटाइटिस एंड सर्टन कैंसर्स. तो जो साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, दे से दैट ये जो चिकन है दे आर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, they are not in the any lab kind of environment. They are very sure about it, and they're also saying that chicken themselves are uninfected by the presence of human protein in their system. So they only take egg white and they discard the egg yolk. लेकिन ह्यूमन बींग्स में जब काम करना है, यू ऑल नो दैट कि हम अभी कोरोना के ज़माने से गुजर रहे हैं, और हमें पता है कि कितना टाइम लगता है किसी भी ह्यूमन मेडिसिन या ह्यूमन वैक्सीन का सामने आना. लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एनिमल्स. We can open up a new market in the veterinary sector. We can look for a lot of things in it. The last example, and very interesting example, or you can say application, जो कि मैं इस यहाँ पे बताना चाहूँगी, that is the biomarker for the sex determination of the chicks. You know that कि जो 1 day old chicks हैं, they have to be culled, and for that, to stop that, scientists, what are they doing? They actually not editing, they are adding GFP, it is a green fluorescent protein gene in the Z chromosome. Z chromosome जो है पोल्ट्री का, उसमें ये इंसर्ट कर देते हैं. अब GFP जो है एक खास लेज़र, या आप कह सकते हैं कि एक खास लाइट में ये ग्रीन कलर शो करती है. ये आप देख सकते हैं, सेल्स दे आर ग्रीन इन कलर, एंड दीज आर द चिक्स व्हिच हैव दिस GFP. their beaks are glowing, their paws their claws are glowing. In the same way, this chick also has the Z chromosome knocking chicken, while this one and this one, they are wild type, which means that इनमें वो जीन जो है वो नहीं डाला गया. तो अब इसमें ये किस तरह से प्रोसेस को किया जाता है. वी ऑल नो दैट कि जो क्रोमोसोम सिस्टम है इन द चिक्स, इन द पोल्ट्री, इसमें जो फीमेल्स हैं दे आर हेट्रोजाइगस, दे हैव W and Z chromosome, whereas males they have homozygous chromosome, they have both chromosomes, Z chromosomes. तो अब Z क्रोमोसोम में अगर GFP ऐड किया जाता है और उस चिकन को ब्रीड करवाया जाता है विद द वाइल्ड टाइप, यानी कि एक ऐसे मेल बर्ड के साथ जो कि जिसमें कि GFP नहीं है, तो जो प्रोजेनी आती है, दैट प्रोजेनी will contain all the females without GFP and all the males with GFP. तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है इवन विद इन द शेल, वेरी स्मॉल एज ऑफ द एम्ब्रियो, जिसमें कि 60,000 तक अगर सेल्स भी मौजूद हो, दे कैन शो फ्लोरिसेंस, दे कैन ग्लो. ठीक है, आप कैंडलिंग करते हैं, रूटीनली कैंडल करते हैं वाइबिलिटी चेक करने के लिए. इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो चेक इट कि ये थ्रू द कैंडलिंग, लेकिन उसके लिए जो लेज़र्स हैं दे आर डिफरेंट दैन दी नॉर्मल कैंडलर्स. तो वो उनको यूज़ करते हुए वी कैन डिटेक्ट एट द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस लेवल कि ये मेल है या फीमेल है, और उसको एट दैट टाइम वी कैन discard or remove. So there are so many you can say the literature about it, but we cannot go through every single thing. But all these things, यहाँ से आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि आपकी सोच है. So this gene editing technique has enormous potential. We need to put regulations. We need to change the things. Policy should be changed. ये challenges हैं policy makers के लिए. Regulatory changes चाहिए. We need to be very careful about what we have to do. We have to stop biohacking, or we have to see कि कहीं पे इसमें biohacking या bioterrorism की गुंजाइश तो नहीं बनती.
We have to put a limit. We have to see where we should put the limit. हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट कहाँ लगानी है, उससे आगे आप नहीं जा सकते. Old policies usually they won't fit with new technologies. So new policies should be included in this, in the health, in the food environment. We should put the balance between innovation. Innovation तो endless होती है, लेकिन we need to do it under regulation. We have to educate people. ये people का right है, ये लोगों का right है कि उनको बताया जाए कि what they are using, what they are consuming, and in the public engagements about the complicated sciences हमें इनको easy करके बताना चाहिए. What should be the how we can use it in future? We can use it to cure the genetic diseases. I was seeing a movie which was named as Human Nature, and वो CRISPR पे बनाई गई थी. YouTube पे आपको मिल सकती है, and it is about 1.5 hour movie. And उसमें एक पेरेंट था, वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और साइंटिस्ट कहते हैं we have to put the limit. So limits should be there, right? वो but अगर पेरेंट्स की नज़र से देखा जाए, they need something which can cure the hereditary diseases. So we can also stop the viruses, we can cure the cancers, we can use this technique in forestry, agriculture, in environment, we can enhance opportunity for synthetic biology, but what we do, we should first think carefully and then we do. Thank you very much. I will give my acknowledgement to the WAPSA family. I will give, I'm very much thankful to them that they gave me this platform to share my thoughts. WPSA Women Wing, which is a part of WPSA Pakistan. I am also thankful to my university that I could do some work over there. And if you want to, to contact me, these are my email addresses. And thank you very much. Thank you, Dr. Aisha. I guess old ways won't open new doors. Something you have really shared a very interesting thing today. सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने इतने complicated तो नहीं कहूँगा, लेकिन tough, generally it's a tough topic, but you have presented in a very nice way, and you keep us attached to the process. You share what is the process and what are the implications if we do on the livestock or poultry segment. I guess we are going to have questions, because before that, I was just making some notes. So one of the things which I just want to ask, do you think that environment or nutrition can have a role in changing the genes? You just unmute yourself, Aisha. जैसे मैंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वहाँ पर जो है वो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एट दोज टाइम्स एनवायरनमेंट में जब फूड की स्केर्सिटी थी, तो वो स्पीशीज़ जो फूड हासिल नहीं कर सकती थी, दे गॉट एक्सटिंक्ट, चली गई. तो एनवायरनमेंट का डेफिनेटली रोल है. अगर न्यूट्रिशन कम है, अगर एनवायरनमेंट में एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनी स्पीशी के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल गो एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी. वी हैव टू नाउ डेज, जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ स्पीशी कम हो रही है, उसको और उसकी तरफ तवज्जो दें. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो उनको शिकार कर लिया जाता है, या किसी वजह से उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, या इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता उनके अगेंस्ट चलता है. दैट्स वाई. Okay, I think that's a great thing. So we can see that these do have the effect on the genes, and later on it can change. So what we trying to have an interactive session today is, we have health parameter, we have environmental factors, and we have nutrition factors. So we are trying to have an interactive discussion how we can use this CRISPR technology, because you said it is available. And first question from my side, and then I'll open for the house, that if these technologies are available, anything we are doing locally in Pakistan, because we have a challenge of disease, we have a challenge of environment, we have a challenge of nutrition. So anything we are doing in poultry specifically? No, I haven't heard about anything. I heard about the working in the plants. In UAF, हमारे भी university में there is a project running, but it is also for the plants at the moment.
बट आई हैवंट Okay. हर्ड कि मैंने नहीं सुना कि कभी, या हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ करेक्ट मी। और प्लांट्स में डेफिनेटली एक या दो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काम चल रहा है। Okay, I guess this is an opportunity. All the WAPSA leadership are around, so we can put into a project and we can do. So now I'm going to just request all people sitting here, they can ask questions. So we have a first question from Benazir. Benazir, you can unmute yourself and you can ask your question, please. अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आयशा, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट क्योंकि आपने बहुत अच्छा सेशन कन्वे किया है। माय क्वेश्चन इज दिस कि these days it is very difficult for us to convince a normal person that the broiler chicken is not a result of GMO, it is just a genetic selection। तो अगर हम GMO इमर्ज कर लेंगे इसमें, और जैसे कि आपने कहा कि मायोस्टैटिन नॉकआउट अगर हम करते हैं और उसका ब्राइलर का जो मीट पोर्शन है दैट विल इंक्रीज, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा किसी बंदे को कन्विंस करना कि नाउ दिस इज अ GMO प्रोडक्ट एंड यू कैन सेफली कंज्यूम इट? A very good question. I was thinking कि somebody will definitely ask it. असल में होता ये है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट में होती है डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। फॉर आवर सोसाइटी चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से WPSA और जिस तरह से बाकी पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री सेक्टर जितनी मेहनत करता है, और उसका नतीजा ये है कि ये सेक्टर जो है ये माशाल्लाह मुसलसल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वी हैव टू डू अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट। हम ये लोगों का राइट है कि उनको पता रहे कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग, लेकिन वी हैव टू कन्विंस देम आसान अल्फाज में, किसी ना किसी तरह से वी हैव टू कन्विंस देम। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह से ब्राइलर है, लोग चाहे वो उसको उसके लिए उस पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन दे आर ईटिंग इट बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल। दे आर people are going in the poultry sector because it is beneficial, profitable. तो we have to, जिस तरह से ये मुसलसल पूरा साल कैंपेन्स चलती रहती हैं, हम इस सेक्टर में हैं, हम जानते हैं, कभी एग डे करते हैं, कभी किसी तरह से, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमें इंसानों में जब डिज़ीज़ कोई होती है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमें यूँ जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाए। हम इंसानों की हर अच्छी चीज़ को इन्हांस करने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें लोग उस वक्त डिस्कशन नहीं करते, दे एक्सेप्ट इट। बट फॉर ब्राइलर उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हम पेशेंस के साथ, सब्र के साथ उनके जवाब दें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। Okay. Thanks, Aisha, and thanks, Benazir. Now I have a hand of Sumaira Ali. Yeah, Sumaira, you just raise your hand and still you want a question, or आपने हाथ drop कर लिया? Okay. So anyone else have a question, please? Okay, we have a question. Yes, Arslan, you can ask your question. Unmute yourself, please. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. You give a very good presentation. My question is that you talk about CRISPR, specific genome editor. My question is, what you suggest by using this technology, can we cure the vertical transmission diseases in poultry, and what are the results, outcome related to this technology? देखिए, जिस वक्त हम वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है हम उसी वक्त उसमें कर सकते हैं जब हमारे पास एक बर्ड ऐसा हो जिसमें हमने ऑलरेडी जीन को एडिट किया हो, उसके उसमें अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि जैसे ये सिर्फ बर्ड्स के साथ नहीं बल्कि हर स्पीशी के साथ हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द जीन, वी हैव टू एडिट दैट क्रिस्पर के ज़रिए उसको फिर एम्ब्रियो में आप लेकर जाते हैं, एम्ब्रियो ग्रो करता है, बिकम अच्छे, एंड देन वी हैव टू यूज़ दोज फॉर दी फर्दर प्रोजेनीज। तो इस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं कि हम एक उसमें से, जिस तरह आप देखें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहा जाता है कि कज़न मैरिजेस जो हैं वो वाली जीन सामने ले आती हैं जो कि
छुपी हुई होती हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं। तो इसमें आपको वो बर्ड्स को साथ लेना होगा जो कि जेनेटिकली एडिटेड हो, और फिर उसको आप आगे से यूज़ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी। देन इट इज़ पॉसिबल कि वी कैन गेट रिड ऑफ दोज डिजीज़, और डेफिनेटली अगर वो डिज़ीज़ से हम छुटकारा हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो बर्ड है वो पहले से बेहतर होगा, प्रोडक्शन बेहतर होगी उसकी, जो है it can develop better. Okay, thanks Aisha. Again, I think जैसे कि आपने अपनी डिस्कशन में जीन एक्सप्रेशन का भी जिक्र किया था, और अगेन दैट इज टू समवन लिंक्स टू न्यूट्रोजेनोमिक एज वेल, और उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन पे कैसे काम हो सकता है। इवन के टू सम एक्सटेंट वी आर चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मीट, के उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं, और हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल if I take the larger example, मैं livestock या poultry की बात करूं, तो feed efficiency, fertility, they are the prominent issues when we talk about the performance and profitability, right? So with this genomic technology या gene editing, we can inculcate these things as you said कि पहले उसके लिए हमें selection करनी पड़ेगी खुद, और फिर उसके बाद उसकी इंसर्शन करनी पड़ेगी उस बर्ड के या उस एनिमल के अंदर, and then we can replicate it to the mass scale, if I understood rightly. Is it the way? Yes, we have to find out कि हमने चेंज कहाँ पे लेकर आना है। We have to know the sequence. हमारे पास वो सीक्वेंस हो उस जीन का। जैसे अगर आप फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं या आप जीन फीड कन्वर्जन रेशियो की बात कर रहे हैं, वी हैव टू नो कि वो ऐसा कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये भी हो सकता है समटाइम्स कि जीन जो है वो उसको कोई दूसरा जीन उसको रोक रहा हो, जैसे मायोस्टेटिन की एग्जांपल दी थी कि वो नेगेटिव रेगुलेटर है, या कोई ऐसा जीन है जो कि इसको इन्हांस कर सकता है फीड कन्वर्जन को। तो हमने पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट। तो अगर हमारा टारगेट जो है उसको हमने नॉकआउट करना है तो हम उसमें कट करवाएंगे उसको। लेकिन अगर हम अपने दूसरा जो हमारा जो टारगेट है जिसको हम एनहांस करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें नाउ द मॉडिफिकेशंस आर गोइंग ऑन इन द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। हम उसमें डोनर डीएनए को ऐड करेंगे, हम उसमें क्रिस्पर को इस तरह से थोड़ा सा चीट करेंगे कि वो काटी ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें चेंजेस लेकर आएंगे, बट वी हैव टू नो द सीक्वेंस बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। Okay, Aisha, just another question, tell our audience में से कोई बंदा हाथ रेस करता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, सो व्हाट आर यू सेड कि ऑलरेडी इसकी किट्स भी अवेलेबल है और इतने बड़ा कोई हाई फाई हमें इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, इफ आई अंडरस्टूड राइटली। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर एक स्मॉल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें कितने बजट चाहिए होगा, या कितने हमें फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है इसके लिए? जी डॉक्टर साहब, इसमें पहली चीज़ तो ये आपके पास सेल कल्चर सिस्टम हो, ठीक है। सेल कल्चर सिस्टम इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस। सेकेंडली, यू हैव टू फाइंड यू शुड हैव द अप्रोच, या आप कह सकते हैं कि आप, क्योंकि ये जो किट्स हैं ये पाकिस्तान में से नहीं मिलती, ये आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो आई मस्ट से कि अगर आपका सेल कल्चर सिस्टम भी नहीं है और केमिकल्स वगैरह और फिर आपने ब्रीड्स को आपने जो है प्रोजनी आपने ग्रो करवानी है, G1 G2, उनमें रिजल्ट्स देखने हैं, तो आई थिंक सो इनिशियली यू नीड 40 to 50 4 to 5 million फॉर वेरी वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। That's great. मेबी इससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि आई डोंट नो द प्राइस ऑफ द किट्स एट द मोमेंट, कि वो जब इंपोर्ट की जाती है तो प्राइस बहुत बढ़ जाती है चीज़ों की। Okay. I think this is again something it's doable. We should think of it. और मैं अगेन अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, नहीं तो कुछ सवालात हमने चैट बॉक्स में रिसीव किए हैं, जिसमें हम देख लेते हैं जी कि ऑफ कोर्स द एथिकल कंसिडरेशन रिगार्डिंग जीन एडिटिंग, ऑलरेडी यू हैव टच बेस, इट वाज अ क्वेश्चन बाय डॉक्टर नासिर, और बेनज़ीर ने का भी क्वेश्चन था, यू जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। सो अदर आर्ग्यू that the genome editing once proved safe and effective should be allowed to cure genetic disease. Of course, that's the advantage we are looking at the moment.
और उसके बाद जी क्वेश्चन है कि कैन वी कलर किल मेल चिक्स बी यूजिंग gene editing, especially in case of commercial layers that are early embryonic. So of course, you shared one of the study where we use the biomarker and see embryogenesis. We can do that. So Yes. I think this question also been addressed. I think it might be possible, but I'm not sure. Achha, okay, fine. So he was answering to that question. But what we understood and learned from your presentation that it is possible and the work has been done on that. How we are going to connect it to the larger scale, that's a question. So now I'm going to request some of the senior people sitting over here so that they can give their comments and some suggestions our way forward how we can take this technology to the next level. So may I request to this Dr. Sumro Saab, Hidayatullah Sumro Saab. हिदायतुल्लाह सुमरो साहब, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और कोई कमेंट या कोई सजेशन आप देना चाहें प्लीज. Okay, so we have Aisha Makbool. Aisha, if you can unmute your mic and if you can give some comment on biotechnology. लगता है सारों ने ज्वाइन करके जो है वो छोड़ दिया. Guys, come up यार, आए सवाल पूछें. Otherwise, I'm going to pick up you guys. So, okay. So, Aisha, are you not listening me? Please, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो this is more relevant your field and you did good work in that. Please. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ गई सर, माशाल्लाह. वैसे कि बड़ा अच्छी प्रेजेंट किया है. क्वेश्चन आपने मेरे भी रिपीट कर दिए हैं कि एथिकल कंसिडरेशन क्या है इसकी, और सेकंड क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में इसको देखा गया है और इस पे कुछ जगह पे बंद भी है ना, और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड यू. And second, my question which are missing, that what is the difference between the gene editing and the transgenesis? What is, these are the same thing or there is something different? And finally, I appreciate the effort of Dr. Aisha, and particularly I salute and a big hand for you to design this wonderful seminar. Thank you very much. Thank you. जी, Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. Sorry, Dr. Shahzad. At that time, I was unable to unmute my mic. I was willing to speak. Okay. So first of all, I would like to thank Dr. Aisha for the wonderful talk. It was a very interesting topic, and I was actually interested to know the applications. And I'm very happy to see them. I've actually taken the screenshots, and I would like to read those articles later. So I would like to add up that because I have worked on learning and memory and neuronal problems during my PhD. So I'm usually reading the applications of CRISPR in human diseases. And I read once that in a family in UK, a person who had ALS, he actually got the gene therapy in his upcoming child, and they removed the gene of ALS. And by CRISPR-Cas9, I think, if I'm wrong, then it was only by gene therapy. They removed that gene, and now his progeny will be free. All of his offsprings will be free of this disease. So CRISPR-Cas9 will be very beneficial, hopefully, in upcoming years. And we hope that we can bring it in Pakistan, and we know that some of the projects are running at the moment. But let's hope that we can apply them and we can also start some projects by our own in the same field. Thank you. That's all from my side. डॉक्टर साहब, पहले मैं डॉक्टर नासिर की बात का जवाब देती हूँ. डॉक्टर नासिर ने ट्रांसजेनिक और जीन एडिटिंग में डिफरेंस पूछा था. ट्रांसजेनिक एक्चुअली जो है उसमें, जैसे मैंने पहले बताया था, कि उसमें फॉरेन डीएनए भी जो बाहर से लेके डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, या म्यूटेशंस उसमें रैंडम होती हैं. लेकिन जो प्रिसाइज जीन एडिटिंग है, उसमें जो एनिमल का अपना डीएनए है, जीनोम है उस इंडिविजुअल का या उस ऑर्गेनिज्म का,
उसके अंदर ही चेंजेस जो है वो क्रिएट की जाती है, नॉट और प्रिसाइज वे में की जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक है वो एक ओल्डर टर्म है। दिस जीन एडिटेड इज़ न्यू टर्म विद मोर एफिशिएंट मेथड्स। और आयशा, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। मैंने एक्चुअली अपनी टॉक में ह्यूमन की कोई भी एग्जांपल इसलिए कोट नहीं की बिकॉज देयर एक तो टॉपिक हमारा टाइटल जो था वो पोल्ट्री से रिलेटेड था, लेकिन हम जानते हैं कि हम सब कुछ जो भी करते हैं ज़्यादा पहले वो ह्यूमन रेस के लिए है, उसके बाद वो बाकी स्पीशीज़ हैं। डेफिनेटली बाकी स्पीशीज़ जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, वी आर एथिकली हमें किसी भी स्पीशी को जो है ख़त्म करना या दिस इज़ नॉट ए थिंग। लेकिन बहुत सारी और एग्जांपल्स भी, सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल थी जो कि जिस एक बच्चा है जिसको सिकल सेल पे का मसला था और ही वाज नियरली डाइंग, लेकिन सिकल सेल उसके बॉडी में ऐसे सेल्स इंजेक्ट किए गए जो कि क्रिस्पर के ज़रिए चेंज थे और उसकी वजह से उसका सिकल सेल जो है वो बेहतर हो गया, यानी वो उसकी जीनोम में नहीं किए गए। सो ये टेक्निक जो है इट हैज़ मेनी मॉडिफिकेशंस एंड पीपल आर गोइंग ऑन। लेकिन जब से वो चाइना में एक्सपेरिमेंट्स हुए 2018 के बाद तो इसको बैन किया गया फॉर ह्यूमन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट्स। तो ह्यूमन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड until or unless with very strict under very strict regulation. The scientist who did that, he is in prison at the moment for 3 years और उसकी जो टीम है वो भी in prison है। और इसमें ये कि वो साइंटिफिक सर्कल से उसको रिमूव कर दिया गया है। So we have to be very careful while working with the human embryo or human research. So it's a very big topic actually. Ethical के साथ साथ जो research side है ये इसको बहुत ही बड़ा टॉपिक बना देती है, जिसके लिए आई थिंक सो घंटों भी हम बैठ के बात करें तो हम कर सकते हैं। तो Thanks for the session once again. Okay, just the last two questions, then we are going to close the session. I guess it was very interesting, and still I want to listen more because it's a new thing and it's adding new value to our industry and business, and I hope it's an opportunity if it is used in right way. So, any further question? Anyone want to ask question, please? Okay, so once we started the question, the number of participants are getting low. So which means that so मैं सर हनीफ के पास आखिर पे आऊँगा क्योंकि मेरे closing remarks सर हनीफ से मैं लेना चाहूँगा। उससे पहले मैं I'm just hunting for someone के जो कि कोई question या कोई comment देना चाहे। So do we have Waqar Alam Saab? If Waqar Saab, if you're listening me, you can unmute yourself. Okay, Waqar Alam Sab, if you can unmute yourself and give your comments. Okay, anyhow, so now I would be going and requesting to our Vice President and a very renowned person in the poultry industry, Dr. Hanif Nazir Saab, कि सर आप अपने comments या अपना experience या अपना जो है कोई suggestions दें कि what could be the next way forward if we want to work on this technology or if we want to introduce this technology in poultry industry. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद जदून साहब, आप इस सीरीज को जो लेके चल रहे हैं, आई हाईली अप्रिशिएटेड। और उसके बाद मैं आयशा रियाज को बड़ा केयरफुली सुन रहा था और रोसलर इंस्टीट्यूट में वाकई पोल्ट्री पे तो बहुत काम होता है और फिर क्वेश्चंस भी बेनज़ीर के और आयशा के, दे वर मेकिंग मी हैप्पी। असल में ये टू वे चल रहा है। एक तो ये है कि डिजीज रेजिस्टेंट जो हैं वो ब्रीड्स बनाई जाएं। मैं तो लॉन्ग टाइम से सुन रहा हूँ कि ब्रीड रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स बनाई जाएं, लेकिन अभी तक ल्यूकोसिस, मैरिक्स, रेव, इस तरह की जो ट्यूमर फॉर्मिंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें अभी तक वो रेजिस्टेंट नहीं हुए बर्ड। अब जब इसमें इतनी कामयाबी नहीं हुई क्योंकि
वन वायरस, जैसे आपने शहजाद बताया कि नासिर साहब ने ट्रांसजेंडर वाला क्वेश्चन उठाया था, और फिर नेचुरल म्यूटेशन भी हैं। तो जो एनिमल है उसके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होने से जो सक्सेस रेट इसमें अभी तक, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी डाइवर्शन हो गई टुवर्ड्स द डिजीज एजेंट्स। तो अब जैसे मैरिक्स में जो 3 सीरोटाइप थे, 1 2 3, इनिशियली सीरोटाइप 3 यूज हुआ, फिर सीरोटाइप 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, फिर किसी जगह 1 2 3 भी यूज हुए, और मैरिक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई और ज्यादा विरुलेंट होती गई। तो अब उसमें जो इंसर्शंस हैं, जैसे रिस्पन्स है सीरोटाइप 1, उसमें जो इंसर्शंस हैं दूसरे ऑन्कोजेनिक वायरसेस की, जो उसको सेफ करें और उसको ज़्यादा एफिकेशियस करें और ज़्यादा पैथोजेनिक ना होने दें, जो वक्त के साथ साथ हो रही हैं। तो दैट इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल। इन्फ्लुएंजा भी हो रहा है, और इसमें मैरिक्स में, चूँकि डर ये था कि मैरिक्स में अगर आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की तो आपका जो जेनेटिक स्टॉक है, जो आपके प्योर लाइन्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो फिर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली आयशा रियाज इज़ ऑन राइट ट्रैक, और उसकी ये जो मैं तो चूँकि लॉन्ग टाइम अगो वो HVT वैक्सीन होती थी, वो 10 साल 15 साल में उसमें प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, बर्ड में प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, मैरिक्स ज़्यादा विरुलेंट हो गई। उसके बाद सीरोटाइप 2 से जब बनी तो कंबाइंड हुआ, डबल इंजेक्शन हुए, तो मज़ीद मैरिक्स जो है वो होती गई मोर पैथोजेनिक एंड मोर विलोजेनिक टाइप ऑफ। तो इसमें ये उस साइड पे जो डिजीज एजेंट है उसमें ये इन्होंने देखा है कि ये जीन डिलीशन, जीन एडिशन, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ रोजलिन इंस्टीट्यूट तो बहुत लंबे अरसे से पोल्ट्री पे काम कर रहा है, एंड आई एम अवेयर ऑफ दोज पीपल हु आर डूइंग दैट। तो उसमें कोशिश तो है उनकी कि अब एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि हमने यहाँ क्या करना चाहिए। हम प्राइमरी ब्रीडिंग तो यहाँ करते नहीं हैं, हम तो मतलब ग्रैंड पेरेंट तक आता है हमारे पास, और बाकी जो जीन चेंजेस हैं वो तो काफ़ी पहले मतलब सिलेक्शन के टाइम पे भी ही हो सकती हैं। तो लेकिन अगर हमारी कोई यहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड है जिसमें पोटेंशियल हम समझते हैं कि है, तो आयशा रियाज एंड ग्रुप हैज़ द अपॉर्चुनिटी। मैं बेनज़ीर साहबा को और वो आयशा दूसरी उनको भी सुन रहा था, वेरी हाई टैलेंट। तो ये इस प्रोजेक्ट पे एक बिजनेस मॉडल जो है वो डेवलप करें, और जब वो मॉडल डेवलप हो जाता है तो फिर उसके अंदर इन्वेस्टर भी मिल जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आयशा रियाज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे मुल्क में भी हम जैसा चिकन खाना चाहते हैं, या हमारे यहाँ जो चिकन पोटेंशियल है बोथ फॉर मीट, टेंडरनेस, टेस्ट एंड यू नेम इट, तो हम यहाँ पे एट पार ब्रीड डेवलप कर सकते हैं जिससे हम compete कर सकें। इंडिया में किसी हद तक हो रहा है, लेकिन वो अभी जेनेटिक सिलेक्शन पे ही हैं, जीन्स पे अभी उनका कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं है। So great, thank you very much, Dr. Shahzad. It was wonderful presentation. The questions were great also. Thank you very much, sir. Thank you very much for your participation and sharing the ideas. And of course, we can customize something tailor-made for Pakistan, and we can see how we can take it to the next level.
So I think Waqar Alam Saab is here. If he can have a comment or question, so that later on we can close the session. Thank you, Jadon. I unfortunately joined late, but I put it in my schedule to join today's session. It really looks very informative. I just wondering that we talk always about the antibiotic resistance in human through some practices in our industry. But on the other side, we talk that the receptors of the chicken or animals are different from the human being. So how we evaluated that the antibiotic resistance is happening in human being by using some AGPs or antibiotic in our industry. Yes. It's a question, Aisha, I guess. Yeah. Just a question to learn. I didn't get actually clearly what were you saying. You're saying that disease resistance in human beings can be stopped by using chickens. No. Sorry, I didn't get your. Let me explain, Aisha, what Waqar Saab is saying, जी जी that AMR, antimicrobial resistance, जी जी is a growing concern for the world, and somewhere it has been banned. So is there a possibility that we can make some gene changes in bacteria, and then that bacteria, like for example, it has been done a little bit for E. coli, Salmonella, they are working on it. So is there any possibility to make the bird resistant against these bacterial diseases, or bacteria could be changed? Exactly. Excellent. Yes. डॉक्टर साहब इसमें आई थिंक सो मतलब मैं आई एम नॉट वेरी मच द एक्सपर्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, लेकिन जहाँ तक जेनेटिक लेवल पे इसकी बात है, दी genes which are responsible for antibiotic resistance in the बैक्टीरिया में चूँकि बड़ी तेज़ी से स्ट्रेन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी डेवलप होते हैं, और उसके बाद वो बैक्टीरिया दे कैन ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स. तो इसमें जो स्टडी है इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो इट कैन हैपन दैट कि हम ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड्स में होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, तो वी कैन परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि वो प्लाज्मिड्स जो हैं उनमें उन जीन्स के साथ जीन्स को कट किया जाए, या फिर उन जीन्स में थ्रू क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कि वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना शो करें. इट्स आई थिंक अगर मे बी आई एम नॉट क्लियरिंग माई पॉइंट, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया से ये रेजिस्टेंस वहाँ पे रुकेगी तो फिर वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगी. और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी स्टार्ट ही बैक्टीरिया से हुई है, वहाँ उसमें ये स्पेसर्स रीजन्स हैं, उसमें वहीं पे उसने बैक्टीरियोफेजिस के डीएनए को लेके उसको कट किया था. तो बैक्टीरिया दे आर मोर नॉलेजेबल देन अस ऑन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. सो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की इंजर्शन या ट्रांसफेक्शन इट इज़ अ रूटीन थिंग. इवन वी आर डूइंग इन आवर लैब हियर इन पाकिस्तान. ये भी एक रूटीन की चीज़ है कि हम जो है वो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का काम या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं. लेकिन जहाँ तक डिजीज़ जीन को चेंज करना है, ऑन एडिट करना है विद यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, आई थिंक इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और मे बी आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. Good. Nice answer. But with respect to this point,
what we are looking outlook for the next 5 years in our own country? Could we will we be able to handle this genes alterations or proliferations, or maybe we are just thinking and it will be a long time taking job, maybe after a decade or 2 decades? Can we conclude it that after 5 years we will be at this position in our own industry? अगर हम अपने ऑन आवर ओन काम करते हैं तो डॉक्टर साहब इसमें डेकेड्स भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कोलैबोरेट करते हैं विद जो बाहर इंस्टीट्यूट्स हैं, with the collaboration of international collaborators, then why not in 5 to 6 years? I am very optimistic in this. अगर हमें वहाँ से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विच हैव द कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अगर वहाँ से ये कोलैबोरेशंस हो जाती हैं एंड दे एग्री टू transfer this technologies here, then we can do we can get some success. I'm optimistic in this. Thanks, Aisha. Thanks, Waqar bhai. I think Good, this is a good. pitch. Thank you. Yeah, Thank this you, is a good pitch. At least we can think of those lines and we can work on that. So, Benazir, you have a last. You have just raised your hand, so I should take your one more question because you have a very interesting question. So, Benazir, you can unmute yourself and ask a question, please. सर मैं सवाल नहीं जवाब देना चाहूँगी वकार आलम साहब का कि हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी बैक्टीरिया और वायरस किसी भी होस्ट को जब इन्फेक्ट करता है तो थ्रू रिसेप्टर्स करता है. लाइक जो एनिमल वायरसेस और बैक्टीरिया वो हमें नहीं इन्फेक्ट कर सकते और हमारे एनिमल्स को नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स. तो अगर हम कोई ऐसी जीन टेक्नोलॉजी, जीन नॉकआउट अगर रिसेप्टर बेसिस पे कर लें तो डेफिनेटली पोल्ट्री में वो वायरस या बैक्टीरिया कभी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. Great. Thank you Yeah, very this much, is the Benazir. same thing वो जो NHE1 का मैंने आपको बताया था, Yes. इवन बिकोसिस में रिसेप्टर्स को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें यह ना कि एक ऑर्गेनिज्म, एक वायरस या एक बैक्टीरिया एक रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता. देयर आर मल्टीपल रिसेप्टर, देयर आर समटाइम हंड्रेड्स ऑफ रिसेप्टर्स. तो हम कितने रिसेप्टर्स लोकेट करेंगे और कितने रिसेप्टर्स को हम टारगेट करेंगे? बट डेफिनेटली देयर आर सर्टन रिसेप्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत क्रूशल होते हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है. और डेफिनेटली यू आर टोटली राइट कि अगर रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो देयर विल नॉट बी एनी इन्फेक्शन. Thank you very much, Dr. Aisha, for your great presentation. And I guess we had a very good interaction. We had a very good questions. And of course, it is an ongoing process and we would be learning from you. And we'll try to come up some ideas where we can collaborate together and we can use this platform for just disseminating this information to the farmer level and be a solution provided to him. Either it should be against the heat tolerance, either it is for the free efficiency, or disease, whatsoever. So there are avenues where we can work together. So once again, thank you very much for your time and your presentation. And I would also like to thank all participants for being interactive and coming up with their comments and suggestions, because that is what we required on this platform. Because see, it's not one person job, it's a team job where we can ask questions, where we can come up with the ideas, then we can meet our target of education, research and organization. So that's what WAPSA is acting on, and definitely with the passage of time we would be improving. So with this hope that we would be having more good presenters coming on the way, and till August and October we have all the slots are booked. So this is a very positive sign. So I also request and encourage all people who just want to again participate in this online lecture series. This is open for everyone. They can send their presentations, they can send their topics, and we would warmly welcome them. So with this, inshallah, we would be sending you the minutes of the meeting. Recording would be available. So still, if some questions are unattended or not been answered, you have the contact of Dr. Aisha. You can post in the WhatsApp, you can send to me, and I'll try to get answer of all those questions. So with this, wherever you are, stay happy, stay safe. Inshallah, see you next time. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.